Students, we are studying the chapter agriculture, in which we have studied about different cropping patterns, we have studied about different cropping practices, then we have studied about major and minor crops, food crops, and food crops other than grains, fiber crops. We have studied about so many things. And in the previous video, lastly, we have taken up the topic of technological and institutional reforms. I think you remember that why these reforms were required. Okay, because of the overgrowing population, some policies were required to overcome the problem. Okay, number of people were increasing, but the grains were less in number. So to enhance those things, to upgrade those things, certain reforms were required, certain policies were required. So government has taken up the policies under technological and institutional reforms. I have told you, technological, technology based, institutional means policy. So students, from here we will study today collectivization, consolidation of holding, cooperation and abolition of zamindari, etc. So these two terms, collectivization and consolidation of holding. Consolidation of holding basically means to bring together different pieces of lands and merge them into one land. ठीक है, डिफरेंट पीसेज ऑफ लैंड उनको मिला के एक ही बना दिया. वाई सो? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लॉट्स. ओके, कलेक्टिवाइजेशन क्या है? इट इज़ अ पॉलिसी टू कंसोलिडेट इंडिविजुअल लैंड एंड लेबर इनटू कलेक्टिव फार्म्स. कलेक्टिव फार्म्स बना दिए, दैट इज़ कलेक्टिवाइजेशन. ठीक है, ये दोनों टर्म्स एक जैसी सी ही हैं, मिलती जुलती ही हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर देम. आई हैव क्लियरली डिफाइंड दीज टर्म्स टू यू. आपको ऐसे ही याद रखना है इनको. कॉपरेशन, cooperation and abolition of zamindari. Cooperation, we all know that to cooperate with each other. ठीक है, एंड abolition of zamindari. इफ़ यू रिमेंबर, पुराने टाइम में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, अगर क्या पढ़ी है आपने, बट अगर ध्यान से पढ़ी है, ज़मींदारी सिस्टम वॉज देयर. अंडर ज़मींदारी सिस्टम भाई एक ही पर्सन के पास कितने कितने गांव होते थे. ठीक है, सारी की सारी ज़मीन उनकी. तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया अब गवर्नमेंट ने. were given priority to bring about institutional reforms in country after independence. तो independence के बाद these institutional reforms were there. Land reform was the main focus of our first 5 year plan. जो if 5 year plans क्या होते हैं कि हमारी गवर्नमेंट एडवांस में प्लान करके चलती है कि अगले 5 साल में हमने क्या करना है. ठीक है, तो उस प्लान के अंडर लैंड रिफॉर्म वॉज मेन फोकस. जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई ही थी, हमें मिली ही थी, एट दैट टाइम फर्स्ट 5 year प्लान्स बनाए गए थे. ठीक है, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. अब देखो इसका क्या मतलब है कि देखो जब हम इंडिपेंडेंट हुए, राइट ऑफ इनहेरिटेंस तो सबको पता है. सपोज दिस इज़ अ फादर. ओके, ये एक फादर की ज़मीन है. फाइन, बहुत बड़ा एरिया है. देन 2 बेटे हो गए, छोटा हो गया ये, 2 में डिवाइडेड, अगेन 3, ये देखो, और ऐसे ही यहाँ पे चाहे 1 हो, फिर यहाँ आगे आप 3 कर लो. ठीक है, इसके कारण क्या हो गया था, प्लॉट साइज़ बिल्कुल छोटा हो गया था. इसके कारण हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की. कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग टू ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ लैंड्स एंड मर्ज देम इनटू वन लैंड टू रिड्यूस नंबर ऑफ प्लॉट्स. तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आ गया आपको, है ना? बार बार रिवाइज करोगे, यू विल रिमेंबर इट. The laws of land reforms were enacted, but the laws of implementation was lacking and or lukewarm. Reforms were made. At that time, reforms were made, but the implementation of those reforms were very slow. The government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in 1960s and 1970s. So, when the government pressurized these laws, that time was 1960s and 1970s.
The green revolution, based on the use of package technology, and the white revolution, Operation Flood, were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. Now these are the technological reforms. So ग्रीन रेवोल्यूशन 1970s में और वाइट रेवोल्यूशन, दीज टू वर इंट्रोड्यूस्ड ताकि हमारा जो कंट्री का हाल ख़राब हुआ था उस टाइम, वो हाल थोड़ा ठीक हो सके. बट दिस टू लेड to the concentration of development in few selected areas. But the impact of these revolutions were also confined to some areas only, जिन areas को पहले select किया था, पंजाब. Okay. Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated. अब क्या हुआ कि मतलब प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे. ठीक है, प्रॉपर रिजल्ट्स तो मिल नहीं रहे थे. Therefore 1980s और 1990s में what the government has done again, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड दोबारा से. ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो उसमें आपके जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं. प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट. अब देखो इसमें क्या क्या किया. देयर वॉज ए इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट. अगर ड्रॉट आता है तो इंश्योर्ड है आपकी अगर क्रॉप्स, तो यू कैन गेट द क्लेम. फ्लड, साइक्लोन, fire and disease. Then establishment of Grameen banks. Grameen banks were established. What was the purpose of establishing Grameen banks? Farmers बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, कई तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते. So they feel hesitating to go to the urban areas, to go to the banks. That's why those banks were established in the rural areas only. They are known as Grameen banks. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर मेड. आप अपना उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में. आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अमूल, दैट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोगों ने खुद से मिलके शुरू की है. एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. सो सबसे बड़ी बात कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक लोन प्रोवाइड करते थे वो उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो होती थी. अदरवाइज दोज फार्मर्स यूज टू टेक मनी फ्रॉम दी ज़मींदार्स, और फिर उनको अगर ज़मींदार से लेते थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था. बेसिक तो उतना का उतना ही रह जाता था, बस वो क्या देते थे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते रहते थे. देन किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. Kisan credit card is very important. This scheme was introduced in August 1998 by National Bank for Agriculture and Rural Development. ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने ये किसान क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, that was also introduced by Government of India for the benefits of farmers. Then we have moreover special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced on radio and television. आप टीवी पे ऐड भी देखते होगे, वो कार्टून्स में दिखाते हैं ऐड या फिर वैसे भी दिखाते हैं कि फ़ोन पे ही उनको मौसम का हाल चाल सब पता चल जाता है. इवन दे गेट सजेशंस टू हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, क्या उसमें और नया डाला जाए. द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स सपोज़ आप गेहूँ ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो आप मतलब मंडी में जाओगे उसको सेल करने के लिए, तो आपको कोई बोलेगा कि भाई मैं तो इससे ज़्यादा में नहीं ख़रीद सकता, तो चाहे आपका नुकसान हो आपको बेचना पड़ेगा, राइट. बट गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दिया कि इससे कम पे तो कोई ख़रीद ही नहीं सकता. दैट मीन्स आपको अपना प्रॉफिट तो मिलेगा, जो किसान हैं उनको अपना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया होता है, ठीक है. रेम्यूरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेक्टेकुलर्स एंड मिडलमैन. सो पूरी तरह से रेट्स डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट सो दैट फार्मर्स कैन नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय द मिडलमैन.
अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो आप सबको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या है, ठीक है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उसमें नई मशीन्स आई, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स की बजाय अब केमिकल फर्टिलाइज़र्स वर आल्सो बीइंग यूज्ड, HYV सीड्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। नाउ व्हाट अबाउट वाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड कह रहे हैं, दैट वाज लॉन्च्ड इन 1970। दैट वाज प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, उन्होंने इसको किया था। It transformed India from milk deficient to largest producer of milk. आनंद पैटर्न एक्सपेरिमेंट एट अमूल, ठीक है। तो अमूल उसी पे बेस्ड है, वाइट रेवोल्यूशन पे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अप टू हेयर वी विल स्टडी टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप द एक्सरसाइज एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। सो रिवाइज द चैप्टर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतना सा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 5 नंबर का पक्का 5 मार्क्स का आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।